Assalamu alaikum and very warm good morning to all. Welcome back students. Welcome back to all in my channel. Today I am going to teach you 4th standard 11 subject economics chapter number 6 market. Today's topic name is oligopoly, the definition of oligopoly, and second topic is characteristics of oligopoly market. This is the sixth part of this chapter, so learn it properly, concentrate in video, and let's start with topic oligopoly and characteristics of oligopoly. Oligopoly has originated from the Greek words oligos, which means few, and polen, which means sellers. So oligopoly means the market having few producers. ओलिगोपोली जो जनरली कहाँ से वो वर्ड निकल के आया है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है ओलिगोस का मीन होता है फ्यू और पोलेन का मीन्स होता है सेलर्स, यानी फ्यू सेलर्स जो जिस मार्केट में होते हैं उसे यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं. Oligopoly includes the market having few producers which sell identical or substitute products. There is extreme competition in this market. यहाँ पे competition भी दिखाई देता है और substitute products भी यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं. Now the definition of oligopoly according to Professor Strigler. Oligopoly is the market in which the firm decide its policy according to behavior of competitors. ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो सेलिंग की पॉलिसी है वो डिसाइड करता है कंपटीशन के कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर के थ्रू. जो प्रोड्यूसर है उसकी सेलिंग की पॉलिसी जिस मार्केट में डिसाइड होती है उस मार्केट को यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोमल, oligopoly is the market in which even a small number of sellers out of the total less sellers are enough to affect the piece of the product. ऐसा मार्केट है जहाँ पे लेस सेलर्स होते हैं और उसकी इनफ इफेक्ट प्राइस और प्रोडक्ट पर होती है. ऐसे मार्केट को यहाँ पे ओलिगोपोली बोला जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोमल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. First number, few sellers and numerous buyers. The number of sellers are producer is less in the market. The number of firms is limited. The number of firms ranges from more than 2 to less than 10 or 20. Due to this, a few number of sellers have a monopoly control over the market. ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेलर्स लिमिटेड होते हैं, फर्म्स भी उसके लिमिटेड होते हैं और वो फर्म की रेंजेस मिनिमम यहाँ पे 2 से लेके 10 और 20 तक होती है और यहाँ पे थोड़े लेवल पर मोनोपोली दिखाई देती है. इसीलिए जो सेलर्स है वो कंट्रोलिंग करते हैं मार्केट पर. The number of buyers is numerous in the market, so the importance of an individual buyer is negligible, due to which the buyers cannot affect the market price. यहाँ पे न्यूमेरियस बायर्स होते हैं, अनलिमिटेड बायर्स होते हैं, इसीलिए जो मार्केट की जो प्रोडक्शन की प्राइस होती है उस पर बायर्स का कोई अफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि सेलर्स थोड़े नंबर पे है, थोड़े लेवल पे है, फ्यू प्रोड्यूसर्स है और न्यूमेरियस बायर्स होने की वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइस है उस पर जो बायर्स है उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता. Number 2, similar or substitutable products. There is sale of identical or substitute products in oligopoly. When the firms in a market produce and sell identical or substitute products, it is oligopoly. For example, products like salt, crude oil, tea, etc. When traders produce identical products, the market follows imperfect oligopoly. For example, cold drinks, motorcycle, etc.
यहाँ पे सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स दिखाई देते हैं। एक ही टाइप्स के अलग अलग फर्म जो प्रोडक्शन बनाते हैं, इसके लेवल पर हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेबल और सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, जैसे कि सॉल्ट, क्रूड ऑयल, टी एक्सेट्रा। Now, third characteristics, entry or exit of firms. In the market of oligopoly, the entry and exit of firms is free or regulated according to the types of oligopoly followed. If there is free oligopoly in the market, then there is free entry and exit of the firms. While the oligopoly is restricted, then the entry and exit of firms is regulated. यहाँ पे थोड़े लेवल पर कंपटीशन भी है, थोड़े लेवल पर मोनोपोली भी है। तो जब मोनोपोली के थ्रू रिस्ट्रिक्शन होता है, तब कोई जो फर्म है वो मार्केट में इजीली एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता। इसी तरह से कंपटीशन होता है, तब थोड़े लेवल पर फर्म एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। नाउ नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट। The expenses done for selling the product are called selling cost. The selling costs include the packing, making the product attractive, sales taxes, transportation expenses given to wholesale and retail traders, showroom expenses, a specific amount expended for sales, prizes, gifts, and the most important being the advertisement cost. The selling cost does not include the production expenses. प्रोडक्ट एक्सपेंस में सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। सेलिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, जैसे कि पैकिंग, मेकिंग अट्रैक्टिव द प्रोडक्ट, सेल्स टैक्सेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सपेंस होता है, होलसेलर्स का एक्सपेंस, शोरूम के एक्सपेंस, स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंस, प्राइजेस, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है। बट सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होता। देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन इन ऑलिगोपोली, सो सेलिंग कॉस्ट बिकम्स an important factor of the market. The seller try to attract the consumers through the selling expenses. The product difference in the market gives a particular identity to the product, so there can be possibility of selling cost. For example, advertisements of television, car, etc. यहाँ पे थोड़े लेवल पर कंपटीशन होने की वजह से जो मार्केट में सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। और हर फर्म का एक प्रोडक्ट की एक अलग आइडेंटिटी, डिफरेंट आइडेंटिटी होने की वजह से एक प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट के साथ उसकी एक आइडेंटिकल अलग से पहचान बनती है। और इसीलिए सेलिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हुए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की जाती है टेलीविज़न पे, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, उसकी जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो मार्केट में जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने के लिए अट्रैक्ट हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। The sellers and producers are very few in number in this market. The sellers or producers can thus easily gain the important information about other sellers or producers. The sellers and producers special focus on the quality and type of the product to attract the consumers. For example, television, car, etc. Producers or sellers. So the firm decides the price, quality or type of its product based on the behavior of the competitors and it depend on them. यहाँ पे जो सेलर्स होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, जिसके थ्रू वो कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा क्वालिटी के साथ बनाने की यहाँ पे वो कोशिश करता है, जैसे जिसकी वजह से कंज्यूमर ऐसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड कर सके। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि नाउअडेज बहुत सारी कंपनी की टीवी की ऐड हम
टीवी पे देखते हैं, तो हर हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से डिफरेंट बताने की वहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो टीवी टेलीविज़न परचेस करने के लिए अट्रैक्ट हो सके। यानी वो अपने हिसाब से क्वालिटी बताते हैं, अपने हिसाब से उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से वो प्राइस भी डिसाइड करते हैं। नाउ नंबर 6, प्राइस स्टिकीनेस। Price stickiness. The number of firms is less and they are interdependent on each other. If any one firm decreases the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price of the product, there is more demand of the product in the market of that particular firm as compared to other firms. There is a decrease in the demand of the products sold by other firms. If the competitive firms do not reach this situation, then they also should decrease the price of the product to stay in the competition. At the end, the price of the product reaches at a nominal level and it becomes impossible to reduce the price further. यहाँ पे थोड़े लेवल पर कंपटीशन है, थोड़े लेवल पर मोनोपोली होने की वजह से मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसकी प्राइस यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से हम देखें तो कंपटीशन के हिसाब से जो कंपटीशन में रहने के लिए वो लेवल के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। तो इसीलिए एक पॉइंट पे हमें कंपटीशन मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है और एक पॉइंट पे आके मोनोपोली। तो मोनोपोली इनिशियली बेस पे दिखता है और एक ऐसे लेवल पे आके जो मार्केट में प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो ऐसे नॉमिनल लेवल पे डिसाइड होती है जहाँ पे आके वो प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। फिर एक ऐसे लेवल पे आके वो प्राइस एज इट इज़ रहती है। तो यहाँ पे उसको उन्होंने डायग्राम के थ्रू हमें दिखाया है, जैसे कि जो फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट इनिशियली बेस पे उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो प्राइस डिक्रीज होती जाती है और एक लेवल पे आके वो स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व के हिसाब से हम देखें तो उसकी प्राइस इनिशियली बेस से लेकर एक नॉमिनल लेवल तक आकर वो प्राइस एक फिक्स बेस पर पहुँच जाती है। On the other hand, if the firm increases the price of the product, then the demand of that product decreases and the competitive firms are profited. Thus, as the nominal price is resistant the changes, the demand curve becomes यानी यहाँ पे हम देखें तो जब फर्म प्राइस इंक्रीज करता है तब जो उसकी डिमांड है वो मार्केट में डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए कंपटीशन में रहने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसकी प्राइस एक नॉमिनल लेवल तक उसे डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में कंपटीशन में बने रह सके। तो यहाँ पे एक हमें किंग कर्व मिलता है, डिमांड कर्व, जो हमें इस डायग्राम के थ्रू पता चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में नोटबुक में उसे लिखना है, फिर मेरे पर्सनल नंबर पे उसे भेजना है और इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।